Good morning to one and all present in my lecture. Today I will start William Wordsworth. Before to start William Wordsworth, I would like to give brief introduction about me. I am Dr. Vinod Kumar Berwa, Associate Professor, Department of English, Government College, Bandipur. William Wordsworth was born on 7 April 1770 and died on 23rd April 1850. He was one of the most dominant romantic poet along with his friend S.T. Coleridge. He belongs to the Romantic age. William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge jointly published a collection of poems that its name is Lyrical Ballads. William Wordsworth had a prominent role in the Romantic movement. It is said that he left an orphan at 13 and was brought up by an uncle. He started his career as a poet in 1793. As I told you earlier, his major publication is a lyrical ballad along with his friend S.T. Coleridge, which was published in 1798. Finally, it is the heralded of Romanticism. Not only the collection of this poem expresses a new attitude towards nature, but also a new faith in man. The poem is a collaborative venture of William Wordsworth and Coleridge. They use the language they use and meter differently from the manner it had been handled by most of the 18th century poets. It is said that William Wordsworth is a man who severally visited France, and the French Revolution had a great impact on William Wordsworth. He was too much impressed with this movement, but later he was, disindulged with it. In the year of 1795, he moved with his sister Dorothy to Somerset, becoming a near neighbor of Coleridge. It is said that these two, Dorothy and Coleridge, had a tremendous influence on him. Wordsworth quote by himself that my best friend in life is, number one is Dorothy and second is S.T. Coleridge. Along with Coleridge, he initiated a new epoch in poetry. अगर हम बात करें कि जो वर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलेज के द्वारा जॉइंटली लिरिकल बैलेट्स का जो कलेक्शन ऑफ द पोइम्स है, जिसको कि 1798 में दोनों ने जॉइंट वेंचर के साथ में पब्लिश की, इसके अलावा भी रोमांटिक मूवमेंट जो इंग्लिश पोइट्री के अंदर रहा, तो हम इसमें कहेंगे कि इन दोनों ने ही उस रोमांटिक मूवमेंट को बड़ी डोमिनेंसी के साथ में शेयर किया। आप
प्रिल्यूड की बात कर सकते हैं, जो कि 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंप्लीट की जाती है, या फिर line composed about the Trenton Abbey, the Lucy poems. All these come in 1802. He also wrote the Intimation of Immortality in the same year. In 1807, he published the poems of He published all these poems in two collections. And it is said that he was made a poet laureate in 1843. विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट के साथ साथ नेचर ह्यूमैनिटी में बिलीव करने वाला व्यक्ति है। उसकी ज़्यादातर पोइम्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ब्यूटी ऑफ नेचर, ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर अलोंग विद ह्यूमन मैन, और टू से द नेचर ऑफ मैन के साथ में चलती है। फॉर नेचर, और टू से नेचर टू हिम was an unfailing source of joy and purest thought. वर्ड्सवर्थ एक ऐसा कंपेनियन था जो बहुत गरीब और गांव का हम्बल व्यक्ति था, और he wrote the poems about the simple and the poor and the countryside peoples. उसने कोई भी पोइम अपनी द इलीट वन को लेकर के नहीं राइट डाउन किया है। ज़्यादातर उनकी पोइम्स, क्योंकि वो रहे, जो कहा जाए कि लेक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंग्लैंड के नियर बाय रहे, तो उनकी ज़्यादातर पोइम्स लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड के ही गरीब, मिडिल वर्ग और नेचर को लवर्स को समर्पित करते हुए उन्होंने लिखी हैं। लैंग्वेज बहुत कहा जाए कलोक्यूल है, सिंप्लिसिटी है, और इमोशंस की इंटेंसिटी तो भरपूर है। इनकी जो पोइम है, इट इज़ मोर टू से डिस्क्रिप्टिव, नॉट ओनली डिस्क्रिप्टिव, और टू से बट इट इज़ आल्सो इंटरप्रेटिव। डिस्क्राइब करने के साथ साथ में हर चीज़ों को वो इंटरप्रेट भी करते हैं, विजनरी होती हैं। इनकी जो पोइम्स हैं उनको उन्होंने बहुत ही पूरे, जिसको कहा जाए कि असमानता का भाव कहीं नहीं लिया, ऑल आर इक्वल टू से कि कहीं इनइक्वालिटी की बात नहीं करते हैं। इनकी जो पोइम्स का एक सेक्शन के रूप में बहुत अच्छी तरीके से लिरिक्स को आप रीड आउट कर सकते हैं। इनकी जो पोइम्स हैं उनको आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इनकी जो पोइम का डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स का ज़बरदस्त स्पॉन्टेनिटी निकल करके आती है। बहुत पावरफुल फीलिंग्स और इमोशंस का रिकलेक्शन की बात करते हैं। इनका बहुत फेमस कोट भी है जहाँ पर वो बात करते हैं कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट ओरिजिन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। यहाँ बात करते हैं कि जो कविता है वो किसी मतलब सोच समझ करके नहीं आती, ये तो एक कलेक्शन है, रिकलेक्शन है हमारी पावरफुल फीलिंग्स का, जो कि एकांत में निकल करके आता है, ट्रैंक्विलिटी में निकल करके आता है। कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है। तो नो डाउट विलियम वर्ड्सवर्थ एक ग्रेटेस्ट पोइट्स में से कहा जा सकता है, जिनका कि जन्म कम्बरलैंड कॉकरमाउथ में हुआ। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपना लाइफ को पहाड़ों के बीच या कहा जाए कि ग्रामीणों के बीच में स्पेंड किया है, ये भी बात है कि उनका जो एजुकेशन है वो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में उनकी शिक्षा हुई थी। और मैंने आपको ये कहा भी, इन्होंने फ्रांस को कई साल व्यतीत किए फ्रांस के अंदर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे फ्रांसीसी क्रांति से।
अपनी सिस्टर और कॉलेज के साथ मिल करके इन्होंने जॉइंट वेंचर किया, और उसके बारे में बहुत कुछ निकल करके आया, जिसका एक वंडरफुल जो आउटकम है वो अपन नेक्स्ट पोइम में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर वो बात करेंगे सॉलिटरी रिवर की. दैट इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम एंड आई लव दैट पोइम, नो डाउट. इनकी बहुत सारा जो मैंने कहा कि लिरिकल बैलड्स हो सकता है, प्लूड हो सकता है, टिंटानेबिया हो सकता है, इंटीमेशन ऑफ हिमार्टलिटी हो सकता है, बहुत कुछ इन्होंने लिखा. बट राइट नाउ हम जिसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. एक बहुत ही करारा तमाचा है सोसाइटी के ऊपर. Before to start this poem, I would like to give a brief introduction about this poem. कि जो ये पोइम है वर्ड्सवर्थ की प्रमुख कविताओं में से एक है, एंड इट इज सेड दैट इट वाज रिटन इन 18 मई 1806 ब्रैडफोर्ड में लिखी थी. और कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ वाज टू मच इम्प्रेस्ड विद मिल्टन, और उन्हीं से इम्प्रेस्ड होकर के उन्होंने इसको लिखा है. नो डाउट इट्स ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जैसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ. और वर्ड्सवर्थ की जो ये कविता है, दिस पोएम, इट गिव्स लॉट ऑफ मॉरल एंड टू से कि हमारी भावनाओं को, मूल भावनाओं को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है. बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि कोई भी धर्म, वह धर्म जो कि अपने आप को बोलता है कि वो शक्तिशाली है, लेकिन वो शक्तिशाली हो ही नहीं सकता. हमारे लिए इसके बहुत महत्वपूर्ण अर्थ वाली बात नहीं है. हमें तो ये कहना है कि ये जो पोइम है इसमें अल्टीमेटली वो बोलता है कि मैं जिसकी बात करता हूँ दैट इज़ द डिफरेंट वन. फाइनली पोइट जो है पैगन धर्म की भी बात करेगा इसमें आकर के. तो ये एक इम्प्रेशन है मिल्टन का, जो कि वर्ड्सवर्थ के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा. और वो उनकी जो टू से जिसको कि नो रिलीजन कैन बी वाइटल डज नॉट मेक नेचर फुल ऑफ नोबल मीनिंग फॉर अस. तो ये एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि अपने आप में बताता है, मॉरल्स को टीच कराता है. जो ये पोइम है, अगर हम इसकी समरी की बात करें तो इट्स अ ग्रेट पेंटिंग ऑफ ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ पीपल towards wealth and wasteful pleasure. He feels sorry for the loss of appreciation of the beauty of nature, which is that is really ours. पोइट और भी कमेंट करता है कि लोग बहुत लालची हैं यहाँ पर, एंड ही फील वेरी सॉरी. एज आई टोल्ड यू, पीपल जो हैं वो बस बिजी इसी बात में है, अर्निंग money, getting and spending all the time. They devoted their energy for the collection of wealth that is wasteful, that is stupid one, that is not the real pleasure, that is not the real happiness for the man. People have actions their feelings, finer sensibilities for the accumulation of wealth in and out of the season. They never look out, or to say they never look into the beauty, or to say towards the sight of the sea. They just want to get and spend. Look at he also give the description of the shining of the moon. The light is very silvery, that is very beautiful, but people are not appreciating this one. They just want to quit from the nature. They want to just get and spend everything. Poet बहुत ज़्यादा फिल्ड अप है विद जो ये अगली लाइफ ऑफ द सोसाइटी है, जहाँ पर डिजायर्स की बात करता है, तो उसको ब्रेक करना चाहता है. द सर्कल्स ऑफ द मटेरियलिज्म के जो है उसको ब्रेक करना चाहता है. He desires to go back to the simple and unsophisticated days of the pagan time. उस पुराने ज़माने में जाना चाहता है जहाँ पर सादा जीवन उच्च विचार होता है, जहाँ कोई लाग लपेट नहीं होते, केवल एन्जॉय होता है. और एन्जॉय हमें जो रियल एन्जॉय मिल सकता है दैट इज़ यू कैन गेट फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द नेचर.
आप नेचर के एस्पेक्ट्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से पा सकते हैं। पोइट उन चीज़ों को गले लगाना चाहता है। पोइट सेज कि आई वांट टू जस्ट जॉइन द पैगन, मैं उसको गले लगाना चाहता हूँ। द एंशियंट ग्रीक रादर देन द कंटिन्यू टू बी द फॉलोअर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। द पोइट आल्सो सेज दैट मुझे जो जीवन के प्रति खौफ है वो केवल नेचर से नज़र आती है और कहीं से नज़र नहीं आती है। सो द पोइम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट by the English romantic poet William Wordsworth, and it is the first industrial it is against the first industrial revolution. To say it is about the revolution for being distancing itself from nature. As I told you, it was composed in 1802, and not exactly 1802, it was yes, I have told you it was published in, okay, it was written in 1802 and was published in 18th May 1806. The now look at the poem. The poem "The World Is Too Much With Us", it is a Petrarchan sonnet. The rhyme scheme of this poem is A baby A, A baby A, C D C D. जहाँ तक हम बात करें कि इसमें स्पीकर की बात करें तो स्पीकर इज़ द पोइट हिमसेल्फ, एंड आई थिंक दिस इज़ द पोइम और इट इज़ collected, or to say the recollected, or to say it was come out the poet's mind near the beach of the sea, and the poet says that ki we are just lord on nature, nature के प्रति हम भजन हैं. So we will discuss later on in the next class. Today it's enough. Thank you.